Namaste everyone. Today I'm live on two platforms, so you will find me looking sometimes here and sometimes there. So hello everyone on Instagram and hello everyone on Facebook. So today I'm going to talk about a very important topic. Actually, I've come up with a series. The things that we model for our children, knowingly or unknowingly. So today I'm going to talk about how we apologize or how we repair. So before I start with the topic, let me welcome Shilpa. Let me welcome Suzanne. Wow. Even Srishti is there watching me. Hi. So as I mentioned, the things that we model for our children, how we apologize or how we repair whenever anything is broken in relationship. So basically what happens, generally कि बहुत ही सिंपल सी बात आज मैं कहूँगी. अगर घर में ग्लास टूट जाता है, if a glass breaks, if it's broken by a child, what is our reaction? We start screaming, sometimes we go beyond, चिल्लाने से भी ज़्यादा कभी कभी हमारा हाथ भी उठ जाता है. I will count myself also in this whole process because I am also a mom. Nothing different, it's a very usual reaction. लेकिन वही चीज़ अगर हमसे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन अ किचन और अगर मेरे से ग्लास टूट जाए तो व्हाट विल हैपन? आई जस्ट वांट टू नो दैट. एंड एट दैट टाइम इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड सेज, मम्मा अब आप किसको पनिश करोगे, अब आप किस पे चिल्लाओगे, व्हाट विल बी आवर आंसर? मेरे को बुरा लगा, मैंने अपने आप को बोला, बट व्हाट वीव डन इज इनसाइड. वी हैवंट टोल्ड एनीबडी, वी हैवंट शाउटेड ऑन आवरसेल्व्स. हमने हम पे नहीं चिल्लाया. So this is very important, very simple thing. Incidents किसी से भी हुआ हो, बच्चे से हुआ हो, हमसे हुआ हो, but how we apologize, because children are noticing that. Sometimes a husband and a wife, they get into a heated argument. I'll give you my example only because I am a mom, a wife, and every phase comes in 24 hours, So it's a dinner table, dinner time, everybody sitting on the table for having dinner. And a simple thing, for example, if the husband tells कि आज तुमने ये क्यों बनाया? At that time, supposing if we are in a good mood as a mom, तो बहुत cool reply मिलेगा. लेकिन अगर if a mom is frustrated, तो reply क्या मिलेगा? It will be cut short, fighting, argumentative reply. And then after the entire incident has happened, the bomb has been bombarded, झगड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया, the children are noticing. The children are noticing this. Then how we seize the situation. At times, most of the times, we are not mindful. बच्चों के दिमाग में वो बात बहुत छप जाती है. Why I picked up this? Because my daughter is very sensitive, So whenever, it's a simple thing for me, कि I just had an argument and the second moment I forget that I argued with my husband. But that thing remains in my daughter's mind. That is why that was an alarm for me. To tell all the parents listening to me that when we have an argument, that argument for us is a routine. हो गया. हस्बैंड के साथ तो रोज नोक जोक होती है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ तो रोज नोक जोक होती है, घर में अगर कोई काम करने आता है स्त्री वाला या काम वाली बाई, नोक जोक होती है. द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग दैट. फॉर अस दैट एपिसोड हैज कम टू अ फुल स्टॉप. वीव ब्लास्टेड, फिनिश्ड. बट एट टाइम्स इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द ऑपोजिट पर्सन. कभी कभी हमारी भी गलती होती है. But majority of the time, I will include myself here first, then the opposite person. अगर मेरी गलती है, then also, in my heart, in my mind, in my soul, I know that I am at fault, but I will not express that. It's very important at a tender age that a child understands. Because जो बच्चा देख रहा है, he is understanding how to deal. Majority of the time the child is learning how to deal. अब उसने देखा कि एक आर्ग्यूमेंट होने के बाद मम्मी कैसे रिएक्ट करती है, मम्मी क्या करती है, मम्मी ने आर्ग्यूमेंट को बीच में छोड़ दिया, मम्मी या डैड, वॉट एवर, पेरेंट, आई विल टॉक अबाउट द पेरेंट्स, नॉट ओनली द मदर्स. योर मदर्स आर नॉट एट ऑल टू ब्लेम और नॉर द फादर्स आर एट टू ब्लेम. सो हाउ वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, how we respond to that situation during that incident, post that incident.
दैट द चाइल्ड इज लर्निंग क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ हुआ तो फिर मतलब उनकी ज़िंदगी में जैसे बच्चे नीचे खेलने गए और कुछ तकरार हो गई, तो हाउ टू डील इज हाउ दे आर लर्निंग हाउ वी डील विथ अदर पीपल इन आवर फैमिली. तो उन्होंने देखा कि मम्मी ने चिल्लाया तो वो बच्चा भी सेम रेप्लिकेट करेगा. दिस इज एन अंडरलाइन, दिस इज इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट हम जैसे सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं, जैसे हम हैंडल करते हैं, इफ एट दैट पर्टिकुलर टाइम होता है कभी कभी वी ब्लास्ट आउट, बट देन आई हैव लर्नड दिस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपोलोजाइज इन पब्लिक. पब्लिक मीन्स फैमिली, 4 जने हैं, अब मेरी गलती हो गई तो अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो वो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, बट आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, माई डॉटर नाउ अंडरस्टैंड्स ओके गलती होती है तो सॉरी बोल सकते हैं. बिकॉज छोटे 2 साल के बच्चे भी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि उनको भी अगर आप बोलो ना सॉरी बोलने के लिए, दैट्स द मोस्ट आई डोंट नो हाउ, बट वो उनके जीन्स में ही होता है. सॉरी बोलने के लिए एक बार आप बोल के देखना, सॉरी थैंक यू दोनों वर्ड्स बोल के देखना कि बेटा चलो आंटी को सॉरी बोलो, गलती होने के बाद, गलती नहीं हो तो मत बोलना, बट ट्राई दिस विद अ 2-year-old. द चाइल्ड विल रेजिस्ट. पता नहीं क्यों सॉरी बोलना इतना मुश्किल क्यों है, गलती मानना इतना मुश्किल क्यों है. तब मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर इंट्रोस्पेक्टिंग दिस कि शायद आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक. नंबर 1, आफ्टर एक्सेप्टिंग द मिस्टेक आई एम नॉट एबल टू से सॉरी. जब मैंने सॉरी बोला सीखा, इट वॉज वेरी ईजी फॉर माई डॉटर. माई सन वॉज ओके, वो ठीक है, वो बहुत ही मतलब सुलझा हुआ इंसान है, उसको मतलब वो बहुत इतना इमोशनल और सेंसिटिव नहीं है, तो उसको मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट माई डॉटर इज वेरी सेंसिटिव. शी विल ऑब्जर्व ईच एंड एवरी मूव, एंड बिलीव मी ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन वॉट एवर एज. मैं ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, आई विल टॉक अबाउट टीनेजर्स ऑल्सो. जब बच्चे थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं ना, वो पेरेंट्स का हर एक मूव, सोचने का तरीका भी अपनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीफोन इज रिंगिंग इन द हाउस एंड द फादर टेल्स द चाइल्ड वॉट एवर एज, 2 साल 20 साल कोई भी, फोन करके बोल दो पापा घर पे नहीं है. इट्स वेरी ईजी, सारे घरों में ये होता है, मेरे घर में भी होता है. But that child who's carrying that message and delivering over the phone is learning that झूठ बोलना is okay. It's very simple, parents. It's very simple. We are the role models of our children. Whatever we do, we'll see. हमारी झलकी हमको बच्चों में दिखेगी, दिखेगी और दिखेगी. And most of the times, when other people see our children, they say, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ये बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड के जैसा दिखता है. वो सिर्फ शक्ल से नहीं होता है, गुण भी होते हैं. जो अंदर के गुण होते हैं वो भी जाते हैं. ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना यहाँ से वहाँ, वो भी ट्रांसफर करता है. सो पेरेंट्स, इट्स हाई टाइम, द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू, दैट children model everything that they see their parents doing. So be very mindful. कितने भी साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा या 40 साल का, please be mindful. That is the first lesson that I have learned, and I request everybody. It's difficult. For me also it was very difficult. But over a period of time, once you start mindful parenting. So let me give you a short example here. Mindful parenting is what, So whenever the argument starts happening in the house, बहुत ही छोटी सी बात पे हो जाती है आर्ग्यूमेंट, हो ही जाती है सबके घर में, और 2 जन होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें एक ठंडा एक गर्म होता ही है. फॉर एग्जाम्पल इन माई हाउस इफ आई एम गर्म, सो तुरंत ही कोई सिचुएशन होती है एंड आई विल ट्राई टू ब्लास्ट. उस टाइम पे if I have programmed my mind that okay, my son is sitting, my daughter is sitting, this is not the right moment to blast, because they are listening, they are learning. 2 things very important: they are listening, they are learning, because my son who's elder learns how to behave, my daughter who's younger learns कि ओके फाइन मम्मी ऐसा करती है, तो बिकॉज वो अभी उस स्टेज में नहीं है कि वो डीलिंग सीखे, लेकिन वो ऐसा लर्न करे, ओके फाइन मामा ये कर रही है तो ये कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 important things that I told everybody, and I'm telling myself first and then everybody. Please be mindful when children are around you. Open your eyes first and then your mouth. Open your eyes first and then your mouth.
When you feel like doing an argument, और हाँ, जैसे सॉरी बोलने की बात आज मैंने कही, उसके लिए भी बहुत माइंडफुल रहिए दैट वेन एवर यू आर रेक्टिफाइंग एनीथिंग, यू आर रिपेयरिंग एनीथिंग. बिकॉज कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज में रिश्ते ऐसे होते हैं कि समटाइम्स यू आर नॉट टॉकिंग विद समबडी इन द फैमिली, एंड चिल्ड्रन यू नो दे कम अप टू यू एंड आस्क यू, मम्मी हम उनसे बात क्यों नहीं करते, बड़े पापा से बात क्यों नहीं करते, हम वो चाची से बात क्यों नहीं करते, हम वो मौसी से बात क्यों नहीं करते. दैट question comes up to the children's mind, and that comes up to us also. That time कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की भड़ास है वो निकाल देते हैं. ये लोग को सारा नथी, वो अच्छे नहीं है इसलिए हम लोग बात नहीं करते, हमारा झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी. That time we have to be very mindful कि whatever we are putting our children's mind is going to be carried to that next generation. If you are not in the position to repair that relationship with anybody in the family, it's okay. But at least we should stop putting negative. अगर हमारी अनबन है, कुछ भी डिस्प्यूट फैमिलीज में होता ही है, कुछ भी डिस्प्यूट हो, at least do not pass it to the children. बच्चों के लिए एटलीस्ट जब हम गैदरिंग्स में मिले, बी कॉर्डियल, बिकॉज चिल्ड्रन आर नोटिसिंग. अगर हमने मुंह फुलाया है, हमने अगर बच्चों के सामने अच्छा बिहेव नहीं किया उनके साथ, या बुरा बोला, बैक बाइटिंग किया, बिचिंग किया, कुछ भी किया, दे आर लर्निंग, दे आर लुकिंग एंड दे आर लर्निंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that at that particular time we be mindful, because our children are learning how to be in a relationship when things are not working properly, because we have to prepare our children for life. We don't have to prepare them for tomorrow. So उनके भी relations होंगे in-laws के साथ, उनके भी relations होंगे जो कभी चलेंगे कभी टूटेंगे. तो cordial रहना अगर हम रह पाएंगे तो हम उनको सिखा पाएंगे. So enjoy this parenting tip, this parenting experience, and if anything that you have to share, please comment in the comment section box, and I'll be coming up with such small incidences that I faced during my parenting journey, so that it may help everybody else. And if you've not liked my page or followed my page, please do the needful so that we can be in touch. So bye bye and thank you for now. Bye bye. Thank you.